So the primary thing that we have in the chapter climate is the difference between weather and climate. When we talk about weather, it is something temporary which changes every hour, every day, or it changes every month, maybe. But if we talk about climate, if same kind of a weather remains in an area for a longer period of time, that is called as the climate of that area. For example, if we talk about Karachi, so in Karachi, hot weather is experienced on a large scale. So yeah, majority of the months in the year, hot weather is experienced, which concludes that the climate of Karachi is hot climate. So by nature, climate is something permanent, and when we talk about weather, weather is something temporary. This is the difference between the two. आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो as per climate, Pakistan has been divided into four climatic zones. We have the highland zone, arid zone, lowland zone, and coastal zone. We are going to talk about the climatic features of each climatic zone. Also, we are going to talk about the areas where they are located and other stuff related to them. So if we talk about the highland zone, so the word, the name itself is indicating that it is something, an area of high upland. So basically, the northern mountains of Pakistan, the northwestern mountains, and the western mountain. This entire area is called as the highland zone. यहाँ अगर क्लाइमेट की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, winters are long, summers are short, a very few people live here, so the population is going to be low in these areas. The terrain is not even, yani ki jo land is not flat, so industrialization cannot be done easily in these areas. Farming on a very small scale, that is farming of apples, peaches, apricots, that can be done only in these areas. वरना और चीजों की farming जो है that turns out to be difficult and it cannot be done in these areas. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं towards other activities. So here water is available in frozen form. Usually the land is not fertile. ठीक है, and basically once we talk about द हाईलैंड जोन, तो यहाँ पर आपके पास लाइव स्टॉक फार्मिंग कैन बी डन, रियरिंग ऑफ एनिमल्स कैन बी डन इजिली. ये एक पॉइंट है हाईलैंड जोन का. If we talk about what is the occupation of the people, so people here are here practice indoor activities. Indoor activities का मतलब है कि the activities that can be done by staying within the house, such as carpet making है, embroidery है, या फ्लावर वाज मेकिंग है, या इस तरह का कोई भी स्टफ है. सो दैट इज प्रैक्टिस इन द हाईलैंड जोन बेसिकली. ये एक हमारे पास प्राइमरी चीज है जिसको समझने की जरूरत है. सो दिस इज समथिंग अबाउट द हाईलैंड जोन. और हाईलैंड जोन में मैंने कहा तीन एरियाज आते हैं. वी हैव द नॉर्दर्न माउंटेन्स, वी हैव द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, एंड वी हैव द वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान. तो तीन एरियाज जो हैं हमारे पास, दोज आर क्लासिफाइड एज द हाईलैंड जोन ऑफ पाकिस्तान. और ये यहाँ पर यूजुअली कोल्ड क्लाइमेट होने वाला है. विंटर्स आर लॉन्ग, समर्स आर शॉर्ट. और कोल्ड क्लाइमेट के एतबार से हम देखेंगे तो वैसे भी इफ यू गाइस हैव विजिटेड द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है या ये नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज जो केपीके the area is, if you talk about that area, so you know how the climate is, what the activities are, and other. Yes, शासन ये climate का chapter है. Yes. Okay, so the next thing that we have is the arid zone. अब arid zone के बारे में जहन में रखिएगा कि there are two areas in Pakistan which are classified as the arid zone. The word arid means hot and dry. So obviously it is going to refer to the desert areas of Pakistan. So we are going to talk about uh, these two areas. ठीक है. So once we talk about the desert areas, so there is a desert in the southwest of Pakistan called as the Haran Desert, and there is another desert which is basically in the southeast of Pakistan called as the Thar Desert. These two areas are basically called as the arid zone. तो ये वाला एरिया Thar Desert का एरिया in the southeast of Pakistan,
and the area in the southwest of Pakistan that is called as the Haran Desert is going to be classified as uh, the arid zone of Pakistan. Here the climate is going to be hot and dry. ठीक है, एक तो ये एक important बात है कि yes, the climate is going to be hot and dry, और दूसरा ये है कि the summers are long, winters are short. यहाँ पर नो वेजिटेशन, ट्रीज फॉरेस्ट आर अवेलेबल, रेयरली a few trees and other stuff is available. So the population is very low because it is extreme dryness, hot climate, animals are not available, food supplies are not available, the population is going to be low. Farming cannot be done here. If we talk about industrialization, it cannot be practiced because the labor is not going to be available since very few people live in these areas. So the question here arises कि भाई कौन सी एक्टिविटी यहाँ प्रैक्टिस होती है. So the activity that is practiced here is called as mining. Mining is the activity that is practiced in these areas. Other than that, और कोई एक्टिविटी यहाँ प्रैक्टिस नहीं होती है. A few animals such as camels, reptiles, and other animals of the desert areas are being observed in these areas. The third climatic zone that we have is the lowland zone. अब lowland zone को जरा समझिएगा. The entire Indus plain except for this third desert area is going to be called as the lowland zone. ठीक है, एंटायर इंडस प्लेन में कौन कौन से प्रोविंसेस आ जाते हैं? द प्रोविंस ऑफ पंजाब इज इंक्लूडेड एज विच इज कॉल्ड एज द अपर इंडस, and the province of Sindh is included till the city Thatta, which is called as the lower Indus. These two areas are called as the lowland zone as per the climate. तो पूरा प्रोविंस पंजाब का आ जाएगा इसके अंदर, एंड द प्रोविंस ऑफ सिंध एक्सेप्ट फॉर द थर्ड डेजर्ट, ठट्ठा के एरिया तक जो लोलैंड जोन है, जो लोअर इंडस प्लेन है, वहां तक जो है इट इज कॉल्ड एज द लोलैंड जोन. अब लोलैंड जोन है तो हियर द क्लाइमेट इज हॉट क्लाइमेट, summers are long, winters are short, and rainfall is available. Natural sources of water are available, just such as the rivers Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Satluj, वो सब यहाँ available हैं, तो water is available. If water is available, natural resources are available, and other stuff is available, तो इसका मतलब है कि here farming can be done easily. The land is fertile, so a lot of people live here in these areas. The reason for being so is that farming can easily be done. Moreover, industrialization can be done in these areas. Land is fertile, the resources are available. So industrialization can be done very easily. Fishing in the rivers, in the ponds, in the lakes can be done in these areas. That is another activity. So this is something about the lowland zone. Moving on to the next climatic zone that we have, which is called as the coastal zone. Now, once we talk about the coastal zone, so coastal zone is basically, the name itself is indicating the areas which are located near to the coast of Pakistan. That is the coastal part and located in Sindh and the coastal part located in Balochistan. Both are going to be included. एक तो coastal part है जो सिंध में, दूसरा coastal part बलूचिस्तान में. Both are going to be included here. ठीक है, the coastal part in Sindh is called as the Sindh coast. The coastal part in Balochistan is called as the Makran coast. Both are a part here. कोस्टल जोन की अगर बात की जाए तो हियर द क्लाइमेट इज गोइंग टू बी माइल्ड क्लाइमेट. व्हाई माइल्ड क्लाइमेट? बिकॉज द कोल्ड सी ब्रीजेस, समंदर की ठंडी हवा अवेलेबल है. सो दिस इज व्हाई द क्लाइमेट इज गोइंग टू बी माइल्ड क्लाइमेट, पहली बात. दूसरी बात ये कि हेयर द ह्यूमिडिटी लेवल इज गोइंग टू बी हाई. ह्यूमिडिटी क्या होती है? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अवेलेबल इन द एयर. सो द ह्यूमिडिटी लेवल इज गोइंग टू बी हाई. एक तो ये बात है. अच्छा, climate is mild climate, humidity level is found to be high, and if we talk about this coastal zone, so here basically what we have observed is that the primary occupation of the people is fishing. What the people do here is fishing. ठीक है. Other than that, farming cannot be done on the coastal zone. अब यहाँ सवाल हो सकता है कि भाई why farming cannot be done in the coastal zone? Because salt is available in the soil and the sea water is salty as well. Therefore, farming cannot be done. The land is not fertile. Industrialization can be done. The climatic factors are suitable. Yes, you can do the industrialization and other stuff. So this is something about the coastal zone. तो चार climatic zones हमने discuss किए. Highland zone,
जिसको हमने कहा कि दैट वाज द माउंटेनियस एरिया एक्चुअली. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एरिड जोन व्हिच वी सेट के बेसिकली इट वाज the desert area. And then we discussed about the lowland zone, which was basically the province Punjab and some parts of the province Sindh. And we have talked about the coastal zone. अच्छा, ये जो coastal zone की पूरी coastal strip है, ये 1000 किलोमीटर लॉन्ग है, जहन में रखिएगा, जिसमें से 300 किलोमीटर जो है वो सिंध में है और 700 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान में. ठीक है. फिशिंग इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल दैट हैज बीन डन इन द कोस्टल एरियाज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, अदर एक्टिविटीज भी होंगी. क्लाइमेट सूटेबल है यहाँ पर. पीपल प्रेफर टू लिव हेयर इन द कोस्टल एरियाज. ऑल्सो द सीनिक ब्यूटी is available in the coastal areas, so the tourism is high, either it is in the coastal areas या फिर आपको tourism high नजर आएगा northern areas of Pakistan में, where the tourists they prefer to come and to visit the northern, the northwestern and the western mountains of Pakistan. Moving on further, the next thing that is assessed in the examination is about a flood and a drought. अब दोनों चीजों को जरा गौर से समझ लीजिएगा ताकि बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए और किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना रहे. फ्लड क्या है भाई? इफ एक्सेस वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड विच डिस्ट्रॉयज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ फ्लड. अब ये एक्सेस वाटर आएगा किधर से? इफ ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल. ठीक है, ये तो एक बड़ी प्राइमरी चीज है कि इफ ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल इफ द वाटर लेवल इन द रिवर राइजेस, सो दैट इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ अ फ्लड. ठीक है, अगर ज्यादा बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से वाटर लेवल इन द रिवर जो है वो राइज करता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ फ्लड. ठीक है, इसके अलावा द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. if the glaciers are going to get melted, that due to a rise in temperature, the glaciers ka matlab hai the snow that was available on the mountains, if it is going to be melted, so it is going to come down in the form of excess water which is going to be a cause of flood. अब फ्लड अगर आता है तो हमें ये पता था आज तक कि भाई फ्लड के डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन फ्लड के एडवांटेजेस भी हैं भाई. तो दोनों चीजों को समझना पड़ेगा. पहले तो बात कर लेते हैं जो कॉमन चीज है, दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लड्स. एक बड़ी कॉमन बात है, उसको देख लेते हैं भाई, वो क्या है. तो बेसिकली फ्लड इज गोइंग टू रिजल्ट इन द स्प्रेड ऑफ वाटरबॉर्न डिजीजेस. ठीक है, a lot of diseases are going to be spread if flood is going to be there. The loss of lives and livelihoods definitely नुकसान होने वाला है on a large scale if floods are going to be there. Loss of vegetation, the forest, the trees and other stuff is going to be destroyed. Destruction of infrastructure as well, roads, pipes, parks, schools, etc. Everything is going to be destroyed once there is going to be a flood. Drinking water is going to be polluted and there are many other disadvantages once we talk about floods जो आप लोगों को already पता है, तो वो तो एक बात नॉर्मल है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है. लेकिन बात कर लेते हैं जरा कि भाई व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लड्स. तो अगर एडवांटेजेस ऑफ फ्लड्स की बात करें तो सबसे पहले तो भाई वाटर इज गोइंग टू बी मेड अवेलेबल फॉर द क्रॉप्स. द एम्प्टी डैम्स, द एम्प्टी व्हाट वी कॉल इज lakes, ponds, they are going to filled with water. Now the water is going to transport the seeds of the plants from one place to another, so water is going to be a source of cross pollination. Fertile soil is going to be transported from one place to another, so maybe the fertile soil can be transported to an area where the land was barren. वहां अगर ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली फ्लड्स आर गोइंग टू बी अवॉइडेड. एक और इसका जो है वो एडवांटेज यहाँ हमें नजर आता है कि भाई फ्लड्स जो है वो आपके पास अवॉइड हो जाएंगे इफ जब फ्लड्स अवॉइड तो नहीं, खैर ये फ्लड्स का एडवांटेज है, बस व्हाट वी कॉल इज कि भाई इफ यू आर बेसिकली गोइंग टू फ्लड इज गोइंग टू अकर, तो आपके पास fertile soil is going to be transported. Also, the water that is available under the land, that water is going to be refilled. So now more water is going to be available for the people in the future. So a question can come in the examination for 6 marks asking you the benefits and the problems related to floods. So you must know what are the problems. फ्लड का बिल्कुल ऑपोजिट है ड्राउट. ड्राउट को जरा समझिएगा कि ड्राउट क्या होता है. ड्राउट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस when no rainfall occurs and extreme dryness arises in an area, that is called as a drought. ठीक है जी. अब ड्राउट
चार तरीके का होता है। It can be a permanent drought. Permanent drought means that if no rainfall occurs in an area forever, बारिश ही नहीं हो रही है कहीं पर, a long time period has passed and still no rainfall has occurred in that area, that is called as a permanent drought. ठीक है. The second one that we have is called as a seasonal drought. Like for example, 6 months in a year no rainfall occurs. ठीक है. और for the rest of the 6 months there is rainfall, there is water available, that is called as a seasonal drought. भाई कभी होता है कभी नहीं होता, चलता है. Unpredictable drought. A rainfall was predicted to happen. People were expecting a rainfall, but the rainfall has not occurred. और उसकी वजह से शदीद ड्राइनेस हो गई, ड्राउट कहलाता है. एक और तरीके का ड्राउट है, दैट इज कॉल्ड एज इनविजिबल ड्राउट. इनविजिबल ड्राउट का मतलब है कि इन एन एरिया इफ द टेम्परेचर राइजेस एक्सट्रीमली फॉर अ वीक और समथिंग अराउंड लेस देन अ वीक, और उसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और ड्राइनेस कैन अकर, उसके चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इनविजिबल ड्राउट. इनविजिबल ड्राउट इसको इसीलिए कहते हैं कि महसूस नहीं होता कि ड्राउट आ गया है, बट इन रियलिटी वो ड्राउट की सिचुएशन होने जा रही होती है. अब इस पर बात आती है कि ड्राउट से होगा क्या. If there is going to be no water available या less water available, so the trees will not survive, the plants will not survive, the crops will not survive, so no food will be available. The herbivores will not be able to survive, so animals are going to die. No food, no crops, no animals, no crops means no food available for the humans, so it is going to result in a famine. याद रखिएगा. ठीक है. तो ड्राउट की वजह से फेमाइन होगा, ड्राउट होगा तो फेमाइन हो जाएगा, ये रिलेशनशिप है, इसको याद रखिएगा और इसको इसी तरह एग्जाम में लिखिएगा अगर आता है आपके पास तो. The next thing in the chapter climate is about the factors affecting climate. What are the factors affecting climate? So there are four important factors जिनकी वजह से किसी जगह का climate influence हो सकता है और change हो सकता है. The first and the foremost factor is altitude and temperature. जितना ऊपर जाएंगे सर्दी उतनी बढ़ेगी. The higher you go upon the mountain, ठीक है, the lesser is going to be the temperature. उमर एक मिनट समझा देता हूँ, रुकिएगा. So the primary thing is कि भाई the higher you go upon the mountain, the lesser is going to be the temperature. ये तो आपके पास हो गया एक फैक्टर कि भाई जितना नीचे आ जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ जाएगी और जितना ऊपर चले जाएंगे सर्दी उतनी बढ़ जाएगी. तो एल्टीट्यूड और टेम्परेचर के दरमियान इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये तो बात समझ आ गई. दूसरी चीज है लैटिट्यूड एंड एंगल ऑफ द सन. ये क्या है बेसिकली समझिएगा. एरियाज विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? द लाइन विच इज देयर इन द मिडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ, वहां पर सनलाइट डायरेक्टली आती है. सो एरियाज विच आर क्लोजर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर. एरियाज विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर. आपके पास सऊदी अरेबिया इक्वेटर के करीब है, देख लें कैसा टेम्परेचर हाई होता है वहां पर. तो जितना इक्वेटर के करीब जाएंगे, दुबई इक्वेटर के करीब के एरियाज में आता है, हाई टेम्परेचर है. इक्वेटर के करीब जाएंगे टेम्परेचर हाई, इक्वेटर से दूर आएंगे टेम्परेचर लो. ये भी एक फैक्टर है विच इज अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया. अनदर फैक्टर इज द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस. समंदर के करीब जाएंगे तो कोल्ड सी ब्रीजेस आर गोइंग टू बी अवेलेबल, तो क्लाइमेट बेहतर हो जाएगा, मौसम बेहतर हो जाएगा, आपका मूड बेहतर हो जाएगा. पीपल प्रेफर टू लिव नियर द कोस्टल एरियाज क्योंकि वहाँ मौसम बड़ा अच्छा रहता है पूरा साल. शहर में अगर गर्मी है, आप इफ यू गो नियर टू द सी, सो देयर कोल्ड सी ब्रीजेस आर अवेलेबल, तो इनको एंजॉय करने का मजा ही अलग होता है भाई. या फिर आपके पास एक सिचुएशन है विच इज कॉल्ड एज अ क्लाउड कवर. नाउ व्हाट इज अ क्लाउड कवर? क्लाउड कवर इज बेसिकली द सिचुएशन के बादल छा गए. बारिश से पहले भी आपने अक्सर देखा हो क्लाउड्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई. इससे क्या होता है कि द एयर अराउंड यू इन द एनवायरमेंट कैन नॉट एस्केप अप इन द स्काई एंड फ्रेश एयर कैन नॉट कम इन. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आपके यहाँ जो हवा है वो जा नहीं सकती और वहां से फ्रेश हवा आ नहीं सकती. सो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सफोकेशन हो जाएगी. ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि आप अपने कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद कर लें तो क्या होगा भाई, सफोकेशन होगी या नहीं होगी? यस, सफोकेशन इज गोइंग टू अकर. तो उस सफोकेशन से गर्मी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी. तो क्लाउड कवर में भी यही हो रहा है कि बेसिकली आसमान पर बादल छा गए, इतने छा गए कि एयर अराउंड यू कैन नॉट गो अप इन द स्काई, द फ्रेश एयर कैन नॉट कम इन, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड कवर.
and that is a major factor which increases the temperature. अच्छा उमर, आप पूछ रहे थे अबाउट फेमाइन. फेमाइन मींस शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसको उर्दू में कहत कहते हैं. इफ शॉर्टेज ऑफ फूड अकर्स इन एन एरिया, खाने को कुछ नहीं, क्योंकि जाहिर बात है क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, जानवरों को पानी पीने को नहीं मिला, जानवर मर गए, तो फेमाइन हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहां तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, क्लाइमेटिक जोन, ड्राउट, फ्लड, इनमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दें भाई, या क्लियर है सबको? तो हम आगे आखिरी टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं, विच इज रेनफॉल. और इस चैप्टर में फर्दर कोई और चीज काम की नहीं है, यही चीजें हैं, बस इनको पढ़ लेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ. सर आज की क्लास में मैंने क्या क्या मिस किया है? मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, आप बेफिक्र रहें. The next thing that we have is rainfall. पाकिस्तान में जो रेनफॉल है, देर आर 5 types ऑफ रेनफॉल दैट आर एक्सपीरियंस्ड इन पाकिस्तान, एंड यू नीड टू रिमेंबर ऑल 5 kinds. सबसे पहली जो रेनफॉल है वो है नॉर्थ मॉनसून रेनफॉल. द वर्ड मॉनसून मीन्स सीजन. ठीक है. अगर इसको बुक से रेफर करना हो तो आपके पास पेज नंबर 32 खोल लें. पेज 32 पर बुक में अगर देखेंगे तो सामने लिखा हुआ है द वर्ड मॉनसून मीन्स सीजन, वहां उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. Monsoon rainfall occurs in two directions. The number one is northeast monsoon, the second is southwest monsoon. जरा समझिएगा, टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, मैप को देखिएगा तो समझ में बात आएगी, वरना नहीं आएगी, क्योंकि ये टेक्निकल बात है. नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द मानसून विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. ये रही बे ऑफ बंगाल. ठीक है जी. यहां से ये बारिश स्टार्ट होगी और बरसना शुरू करेगी. ठीक है जी. अब ये स्टार्ट हो गई और बरस रही है, द रेनफॉल हैज स्टार्टेड, और ये बरस रही है धीरे धीरे धीरे. इट इज गोइंग टू क्रॉस द एंटायर इंडिया, और बरसते 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 इट हैज एंटर्ड पाकिस्तान फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और यहां से एंटर होके ये आएगी टुवर्ड्स पंजाब. ये आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर. यहाँ ये बारिश होने के बाद इट इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ सिंध, और यहाँ पर आके खत्म हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून. जहन में रखिएगा, ये बात समझ आती है. Another kind of rainfall that we have is called as the southwest monsoon. Now, what is the southwest monsoon? जरा समझिएगा. Southwest monsoon originates in the Arabian Sea. ठीक है. And it enters India and then enters into the Pakistan from the southeast, moves on towards the south and then towards the southwest. साउथ वेस्ट मानसून होती है जून से सितंबर तक, इसको समर मानसून भी कहते हैं. अभी जो रेनफॉल हुई है कराची में और इंटीरियर एरियाज ऑफ सिंध में, वो साउथ वेस्ट मानसून थी. ठीक है, जहन में रखिएगा. अच्छा, रेनफॉल जो है वो पंजाब साइड पे भी हुई है. ये रेनफॉल जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून थी जो पंजाब साइड पे हुई, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग टाइम पर हो, एक टाइम पर भी हो सकती हैं. यूजुअली नॉर्थ ईस्ट मानसून स्टार्ट होती है जुलाई से लेकर और एक अक्टूबर तक तकरीबन, जो है जो रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है. तो अभी आजकल जो पंजाब साइड पर बारिशें हुई हैं, दैट वाज द नॉर्थ ईस्ट मानसून. और जो हमारे यहाँ सिंध से जो बारिश आई है फ्रॉम द इंटीरियर सिंध टुवर्ड्स कराची एंड टुवर्ड्स बलूचिस्तान, जिसकी वजह से देयर हैज बीन फ्लडिंग इन बलूचिस्तान एज वेल, वो साउथ वेस्ट मानसून थी. जहन में रखिएगा. तो आई होप कि ये क्लियर हो गई हो, क्योंकि ये टेक्निकल बात है, ये सारी जिंदगी समझ में नहीं आती बच्चों को कि भाई ये बारिश कौन सी बारिश कहाँ से आई. इसीलिए मैंने बता दिया कि कौन सी बारिश कहाँ से चली, किधर से आई, एक एक पैटर्न समझा दिया है. क्लियर हुआ है भाई सबको? उमर, शासन, मुसब, हारिस, उसवा, क्लियर है बेटा? यस सर. चलें, शुक्र अल्लाह का. अच्छा, ये जो आप एरो देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्ट मानसून का है. ठीक है. और ये जो एरो है ये साउथ वेस्ट मानसून का है. नॉर्थ ईस्ट मानसून को अगर आप देखें तो इट इज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी, और अगर आप साउथ वेस्ट मानसून को देखें तो इट इज ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड.
तो अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट मानसून कौन सी वाली मानसून है, तो इट इज द मानसून विच ब्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। ये देख लेना, जमीन से समंदर की तरफ आ रही है ना, एरो देखें। एंड इफ यू टॉक अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून, तो इट इज द मानसून विच ब्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, समंदर से लैंड की तरफ जा रही है। ऐसा ही है, नजर आ रहा है। The next kind of rainfall that we have is called as the Western Depression, which occurs in December. सर्दियों में ये बारिश होती है। एक्चुअली ये पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है, इसके पीछे अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान की बैक साइड पर कहीं दूर एक सी है विच इज कॉल्ड एज द मेडिटेरेनियन सी। दिस वेस्टर्न डिप्रेशन starts over from the Mediterranean Sea, travels across Iran, Iraq, और सब ट्रेवल करके अफगानिस्तान से ट्रेवल करती हुई इट इज गोइंग टू एंटर पाकिस्तान फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. So it is going to be raining at the northwest, and then it is going to come towards the west. This rainfall is specifically the rainfall that occurs in द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसको वेस्टर्न डिप्रेशन कहते हैं. वर्ड डिप्रेशन का मतलब ही बहुत तेज किसी चीज का आना होता है, और सिंस दिस रेनफॉल इज फ्रॉम द वेस्ट, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्टर्न डिप्रेशन. ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल. The next rainfall that we have is basically convectional currents. Convectional current बड़ी कॉमन रेनफॉल है जो हर जगह तकरीबन आपको पाकिस्तान में मिलेगी. कन्वेक्शनल करंट्स क्या है कि आपने सुना होगा वाटर साइकिल के बारे में कि द हॉट एयर राइजेस अप, the water is basically evaporated, it turns into clouds, and the clouds they fall on the ground in the form of rainfall. Yeah, the clouds they shower rain on the ground. सिंपल. और वो पानी दोबारा जाके सी में मिक्स होता है या पॉन्ड में मिक्स होता है और दोबारा से दिस वाटर साइकिल कंटिन्यूज. तो ये वो जो वाटर साइकिल वाली कहानी थी, ये कन्वेक्शनल करंट्स कहलाते हैं. कुछ और टेक्निकल बात नहीं है इसके अंदर. ये टेक्निकल रेनफॉल है रिलीफ रेनफॉल. जरा समझिएगा इसको कि ये क्या है. रिलीफ रेनफॉल इज रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द लैंड. होता क्या है कि बेसिकली आपके पास बारिश जो रिलीफ रेनफॉल होती है, ये पहाड़ के एक तरफ होती है और पहाड़ के दूसरी तरफ कोई बारिश नहीं होती है. तो बेसिकली क्या होता है कि बारिश होना शुरू होती है ऑन वन पार्ट ऑफ द माउंटेन, और बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है. तो होता ये है कि ये बारिश होते होते व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द माउंटेन, the water turns into frozen form, and all of the water it gets frozen at the top of the mountain. तो फिर अब बादलों में तो पानी खत्म हो गया, सारा था वो इधर फ्रोजन हो गया. So this part of the mountain is not going to receive any kind of rainfall, and this area is called as a rain shadow area. तो एक तरफ बारिश हो रही है तो आपको नजर आ रहा है ट्रीज आर अवेलेबल एंड अदर स्टफ, while on the other side there is no rainfall available, so that is going to be a rain shadow area. ठीक है, I hope it is understandable. The last kind of rainfall that we have is tropical cyclones. ऐसा होता है tropical cyclones, देख लें भाई. Basically the air pressure in the sea rises, so rise in the air pressure basically causes the water level to rise, and this excessive water level, the increase in the pressure of the waves, is going to strike the seaside. Yeah, is going to strike the basically city or the country. तो उससे ये कि destruction is going to occur on a large scale. However, tropical cyclones ये आते सालों में कभी हैं और बहुत कम ही इनसे जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई है ऑन अ लार्ज स्केल. ज्यादा डिस्ट्रक्शन इनसे हुई नहीं है. बट यस, दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड के दे अकर यूजुअली. तो इस चैप्टर में आपके पास बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है. अच्छा, ये रेनफॉल क्लियर हुई है सबको? बताइएगा. मॉनसून रेनफॉल, वेस्टर्न डिप्रेशन, कन्वेक्शनल करंट्स, रिलीफ रेनफॉल और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, 5 तरह की रेनफॉल मैंने बताई है. कोई मसला हो पूछ लें. यस सर. चलें, शुक्र अल्लाह का. अच्छा, इसके अंदर बेसिकली आपके पास क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? डिस्क्राइब द वाटर मैनेजमेंट स्कीम्स टू कंट्रोल ड्राउट. अ क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स. अप टू व्हाट एक्सटेंट फ्लड्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स और बेनिफिट्स फॉर एन एरिया. 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है.
explain how the climate of deserts area affect the agricultural and industrial development। ये बेसिकली है कि भाई डेजर्ट में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सकती है या नहीं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है या नहीं, इसके 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, यानी 2 फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, 2 फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, कि भाई डेजर्ट एरिया है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो शायद हो सके ऑन अ स्मॉल स्केल, लेकिन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकेगी। द रीज़न इज के लेस वाटर इज अवेलेबल एंड द लैंड इज नॉट फर्टाइल, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू सर्वाइव इन दीज सिचुएशंस। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनकी पिक्चर ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वट एवर इट इज, और ये आप लोगों ने करनी है। अच्छा, पिछला काम जो है वो अब तक सबमिट नहीं हुआ है मुसब, आपका भी। हारिस, एक क्वेश्चन आज मुझे मिला है, और बाकी उमर आपने जो है वो काम मुझे कल सबमिट करवाना है सारा, और ये नोट कर लें, ये क्वेश्चंस भी उसके साथ ही सबमिट करवाइएगा। सही है सर, मुझे ये पूछना है पूछें। कि जैसे ये दुबई में और ऐसी जगहों पे ये लोग। And once we talk about the chapter forest, so basically the most favorite part of your examiner is the topic deforestation, जिसको समझने की जरूरत है सबसे पहले। अच्छा जी, deforestation, what does the word deforestation means? The word deforestation means clearing the area of land and cutting down trees. So if trees are being cut down, so what are the reasons why are trees being cut down? Because trees are of a lot of benefits, ये तो आप सबको पता ही है कि trees are of a lot of benefits to us. So if trees are being cut down, what is the reason for the cutting down of trees? What are the harmful effects that are going to occur? उसकी भी बात करनी है हमें। And how deforestation can be controlled, फिर उसकी भी बात करनी है। So a lot of things are there which are required to be discussed once we talk about deforestation. So basically what happens is कि deforestation occurs for clearing the area of land. If you want to build houses, dams, roads, bridges, etc., so you need to clear the area of land. Urbanization, if cities are being built, if the forest is converted into a city, you need to clear the area of land, so that is also going to require deforestation. Building of roads, if roads are being built in an area, so building of roads is also going to require deforestation, and that is going to occur on a large scale, आपको नजर आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल चाहिए। इफ द इंडस्ट्री रिक्वायर्स वुड एज द रॉ मटेरियल, अगर लकड़ी जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर चाहिए, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन के की वजह से डिफॉरेस्टेशन इज गोइंग टू बी डन ऑन अ लार्ज स्केल। और एक पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग, if the cattle, the sheep and the goats, they eat a lot of leaves and trees and other stuff, तो उसकी वजह से भी जो है वो deforestation can occur in that area। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज है हमारे पास। ये देखें जी, ये ओवर ग्रेजिंग हुई हुई है यहाँ पर माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वुड इज बीइंग कट डाउन, दिस इज रोड्स आर बीइंग बिल्ट ऑन द माउंटेन, तो उसके लिए डिफॉरेस्टेशन इज डन। द लैंड इज बीइंग क्लियर्ड इन दिस पिक्चर, यहाँ पे घर वर बनाए जाएंगे। सो दीज आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो उससे एक कॉमन इम्पैक्ट तो जो आने वाला है वो ये है कि भाई more carbon dioxide is going to be available in the environment, which means that it is going to result in global warming and less oxygen available in the environment। ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है जो हमें पता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर हमारे पास जो एक और बात है इसके अंदर which needs to be understood is कि भाई if there are going to be no trees, so there are chances of more floods। अगर फ्लड आएगा और ट्रीज नहीं होंगे तो वाटर के प्रेशर को रेजिस्ट नहीं करेंगे ट्रीज, तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। फिर तीसरी बात है, if trees are being cut down, animals are going to lose their habitat, so basically the animals are going to be extinct। ये एक बात है। if the trees are being cut down, तो soil erosion is going to occur, the fertile soil is going to be washed away with the water and the air। ये सब डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट्स हैं। एक और जरूरी इम्पैक्ट सुने, if deforestation is going to occur, then more heat is going to be absorbed into the land directly, which is going to increase the temperature। तो ये आपके पास इम्पैक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के, कि अगर कहीं डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसकी वजह से ये नुकसानात हैं जो आपको नजर आएंगे।
नाउ टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। अगर कहीं डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो फिर क्या करें भाई? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट शुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स द पीपल के बेसिकली ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन। वी शुड बी फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स टू वुड या ऑल्टरनेटिव्स टू व्हाटएवर दैट इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ वुड या ट्रीज, ताकि ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन। तीसरी बात यह है कि द गवर्नमेंट शुड मेक लॉज फॉर नॉट कटिंग डाउन ट्रीज। एक ये कॉमन चीज बिल्कुल। लैंड स्लाइडिंग इज ऑल्सो अ इशू विच अकर्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन डेफिनेटली। तो ये तो तीन तरीके आपके पास हो गए। इसके अलावा गवर्नमेंट कैसे करे? तो उसका एक तरीका है एफॉरेस्टेशन। व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? कि इफ देयर इज अ क्लियर एरिया ऑफ लैंड एंड ट्रीज आर ग्रोन ऑन दैट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज एफॉरेस्टेशन। तो अगर लोग इस तरह की कोई ग्रीनरी या प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो वो एक अच्छी चीज है। या फिर एक कॉन्सेप्ट है रीफॉरेस्टेशन का। व्हाट इज रीफॉरेस्टेशन? Reforestation means कि if trees were available in an area, they are being cut down and more trees are grown again. That is called as reforestation. So that is also a way out कि how this issue can be resolved and how trees can be grown, और वो सारी चीजें जो हैं, जो जितने भी related problems हैं, उनको दूर किया जा सकता है इसके जरिए। ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो है वो ये मेजर बात है जिसको समझने की जरूरत है। तो आपके पास जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, या तो वो आपसे पूछेगा भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों हुई, इफेक्ट्स क्या थे, सॉल्यूशंस क्या थे, वो कुछ भी पूछ सकता है। या फिर आपके एग्जामिनर का एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। Sustainable forestry means that you should be growing the trees or managing the trees in such a manner that they are available not only in the present but also for the future generations. ट्रीज को इस तरीके से मैनेज करें, थोड़े काटें बाकी ना काटें, कि दे आर नॉट ओनली अवेलेबल इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। इसके लिए एक टेक्निक है जो यूज की जाती है विच इज वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज, इज कॉल्ड एज दी सेलेक्टिव कटिंग टेक्निक। इसको जरा समझिएगा। द रिसर्चर्स दे गो इनटू द फॉरेस्ट, they analyze the trees and they find out that what are the trees who can grow very easily and at a fast pace as well. For example, if you talk about the neem tree, it grows within a year. If you talk about the coconut tree, it takes about 25 years to grow. So you need to cut down the neem tree, but you shouldn't be cutting the coconut tree. Moreover, the researchers they also find out what are the trees which are young, they should not be cut down. However, the old trees which are going to be decayed or which are going to die one day, those should be cut down. That is another method which can be observed. So selective cutting is expensive, but this is the best method to control deforestation. अच्छा, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है वो टेरेसिंग का है। व्हाट इज टेरेसिंग? टेरेस फार्मिंग जिसको कहते हैं। टेरेस फार्मिंग में ये होता है कि द एरियाज विच आर लोकेटेड ऑन द माउंटेन्स, the people what they do is that they divide the mountains into these kind of terraces, and on these terraces plants या trees are being grown। और उससे ये होता है कि basically these terraces are used for growing crops and other stuff। ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक तरीके कार नजर आता है व्हेन वी टॉक अबाउट टेरेस फार्मिंग। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जिसमें वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग बेसिकली हम कहते हैं कि इफ फार्मिंग इज डन ऑन द माउंटेन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग। एक और चीज है स्ट्रिप प्लांटिंग जिसको कहते हैं कि इफ फार्मिंग इज डन ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन, माउंटेनियस एरिया है और उस माउंटेनियस एरिया को जो है टेरेसेस में डिवाइड नहीं किया, बल्कि जहां कहीं भी जगह मिली सूटेबल वहां आपने जो है वो क्रॉप्स ग्रो कर दिए, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिप प्लांटिंग। अगर आप इस एरिया को देखें तो यहाँ पर कहीं भी द एरिया हैज नॉट बिन डिवाइडेड इनटू टेरेसेस, बल्कि जहां जगह मिली वहां आपने क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, जहां जगह नहीं है, देखिए जैसे यहाँ जगह नहीं मिली यहाँ छोड़ दिया। इसको स्ट्रिप प्लांटिंग कहते हैं। और एक और बेसिकली आपके पास जो चीज है वो कहलाती है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग क्या है कि बेसिकली इसके अंदर भी टेरेस टेरेस फार्मिंग की तरह होती है ये काउंटर प्लोइंग भी, कि इसके अंदर आप
माउंटेनियस एरियाज पर जो है वो उसको माउंटेन्स को टेरेसेस में डिवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ आप एक और काम ये करते हैं कि जो टेरेसेस हैं, इन टेरेसेस की साइड्स पर जो है वो बाउंड्री वॉल लगा देते हैं, so that the water, if the plants are being watered, तो the water will not flow downwards. अब यहाँ अगर मैं बाउंड्री वॉल लगा दूं फॉर एग्जाम्पल, सो द वाटर विल नॉट फ्लो डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बेनिफिट टू दिस एरिया। तो ये इस तरह की फार्मिंग, अगर टेरेस फार्मिंग को एडवांस कर दिया जाए तो वो काउंटर प्लोइंग कहलाती है। दैट इज अनदर थिंग which is observed when we talk about the topic forest। तो ये तो सबसे पहले जब आपने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, ये आपका पास चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 71 से शायद। तो वहां से जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको कर लेना है। इसके अलावा आपके पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है विच इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट बेसिकली अगर हम कहें, so the trees, they can be used for the manufacturing of medicines. They provide us shade, they provide us oxygen, they provide us scenic beauty, tourism increases, they provide raw material for the industries, they prevent global warming, also they prevent floods and they prevent soil erosion. ये सारे भी फायदे हैं अगेन फॉरेस्ट के दैट आर गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। एक और बात समझ लीजिएगा कि प्राइमरीली फॉरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। One are called as the productive forest and then others are called as the protective forest. Productive forest क्या होते हैं कि all those forests which were available by default in this world are called as productive forest। जब ये दुनिया बनी तो जितने जंगलात यहाँ by default available थे वो तमाम के तमाम productive forest कहलाते हैं, ठीक है। एंड इफ देर इज एन ओपन एरिया ऑफ लैंड, और वहाँ लोग खुद से जो है वो दरख्त उगाते हैं और उगते उगते इतने ज्यादा दरख्त हो गए कि टर्न्स आउट इनटू अ फॉरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। सच एज छांगा मांगा इन लाहौर, एक एग्जांपल है, लाहौर में एक जगह है छांगा मांगा के नाम से, वहां पीपल हैव ग्रोन ट्रीज सो मच दैट इट हैज टर्न्ड इनटू अ फॉरेस्ट। इस तरह का है वो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये लाहौर में है बेसिकली, छांगा मांगा के नाम से प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, लोगों ने ट्रीज उगाना शुरू किए थे एंड नाउ फाइनली इट हैज टर्न्ड इनटू अ फॉरेस्ट। तो ये एक चीज है जिसको समझने की जरूरत है यहाँ पर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस, उनको जरा समझ लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा अपने पास। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एनी 3 सॉल्यूशंस टू डिफॉरेस्टेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन टॉक अबाउट देम। इसका एक क्यू बॉक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 73 पर। क्यू बॉक्स क्वेश्चन मैंने आंसर करना बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ कि फॉर अ क्यू बॉक्स क्वेश्चन you are required to agree with one statement and you are required to give 3 reasons, then you are required to disagree with the other statement and you are required to give 3 reasons। अब आपकी मर्जी है, किसी एक से अग्री करें, किसी एक से डिसअग्री करें, दैट इज अप टू यू, नॉट एन इशू, ठीक है। अगर ये फिर भी मुश्किल लगे तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। नेम 2 एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स के नाम आपको मिल जाएंगे बुक में, तरबेला वाटरशेड प्रोजेक्ट है और डिफरेंट नाम है इसके, तो वहां से आप कोई से 2 नाम याद कर सकते हैं, एग्जाम में भी इसी तरह सवाल आएगा। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, 2 फॉर ईच, 2 कॉजेज बताने हैं, 2 इफेक्ट्स बताने हैं। डिस्क्राइब काउंटर प्लोइंग एंड टेरेसिंग, ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इनका डिफरेंस काउंटर प्लोइंग एंड टेरेसिंग का, तो उसको बेसिकली आप कर सकते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जिनको अपने पास जो है वो नोट कर लें सबसे पहले तो।